Hello everyone, my name is Amrit and I welcome all of you in Orphiki's One Shot Revision. This topic that we'll be studying today, that is your reproduction in plants, is a very important topic because आपके higher standards में you will learn about how this process of reproduction it takes place in your higher organisms, right? So let's begin. If we talk about reproduction, right? So basically reproduction is the production of new individuals from their parents. इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करें, reproduction, so basically this is producing something again, right? आप एक चीज को फिर से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, right? So basically आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, in most of the cases either there will be a single parent. अगर sexual reproduction की बात करें तो there would be one more parent and then a new individual is produced. So in this topic we'll primarily deal with कि plants किस तरह से reproduce करते हैं and what are the different modes through which plants reproduce. Right? So before going into the details, right, let's see that plant what are the different parts of a plant. ये आप already अपने class 6 में पढ़ चुके हैं, पर फिर से एक quick revision ले लेते हैं. So right, so this is your flower, right? This is your fruit, leaf, stem, and your roots. Right. So in certain plants ये सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं. फ्लावर्स जो होते हैं they are usually the sexual parts of the plant. Your leaf, stem and your roots, right, they become the vegetative part of your plants. Fruits जो होते हैं, fruits में से it contains your seeds, ठीक है, which later germinates into a new plant, right? So जो भी the certain plants, right, which have your roots, stems and leaves, right, तो ये जितने भी parts होते हैं we call them the vegetative part of a plant, right? क्योंकि ये वैसे parts होते हैं जो sexual reproduction में involved नहीं होते हैं, therefore we refer to them as vegetative parts. After sometimes most of the plants they grow flowers और ये flowers जो होते हैं इनमें से ही फिर आपके fruit निकलते हैं, right? अगर आप मैंगो का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, राइट, सो देयर यू सी सच फ्लावर्स और फिर उसी में से ही आपके फ्रूट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो विल सी हाउ दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो सीड्स जब एनिमल उन्हें कंज्यूम करते हैं, फॉर दैट मैटर जब हम भी फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, सो वी यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स. और यही सीड्स को जब सूटेबल कंडीशंस मिलते हैं, सूटेबल कंडीशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर मिलता है, तो ये जर्मिनेट करते हैं इनटू न्यू प्लांट्स. So your flowers they perform the function of reproduction in plants and therefore flowers are referred to as the reproductive parts, right? They are they are not considered as a vegetative part, they are referred to as the reproductive part of the plant. There like I talked कि बहुत सारे तरीकों के से आपके plants जो है वो reproduce कर सकते हैं. We usually categorize it into two types. One is your asexual reproduction, the other one is your sexual reproduction, ठीक है? Asexual reproduction में क्या होता है that plants can give rise to new plants without seeds. Seeds के बिना भी आप नए प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स जो बनते हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एक में सीड की जरूरत नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड के से ही आपके न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले दैट your new plants they are obtained without the production of seeds, right? So one type of asexual reproduction is your vegetative propagation, right? So as the name suggests आप plants के vegetative parts को use करते हो new plants grow करने के लिए, right? So it is the type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds, right? So all of these are your vegetative parts of a plant, and therefore इस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं.
राइट। सो एक एक टेक्निक होता है इसमें जिसे हम कटिंग बोलते हैं, राइट, जिसमें सपोज कीजिए आपका ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है, एंड व्हाट यू डू इज यू सिंपली कट ब्रांच, राइट, यू कट इट इन अ स्लैंटिंग वे, आप ऐसे स्ट्रेट कट नहीं लगाते हैं, यू कट इट इन अ स्लैंटिंग वे, और आप इसी ब्रांच को सुटेबल सॉइल कंडीशन में आप इसे प्लांट करते हैं, और इसी में से फिर आपका न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है, राइट। सो दिस इज योर कटिंग। फिर इसके बाद आपके सर्टन प्लांट्स होते हैं तो उसमें आपको दो तरह के बर्ड्स देखने मिलते हैं। वन इज योर फ्लावर बर्ड्स, जिसमें से फिर आपके फ्लावर ग्रो करते हैं, एंड द अदर वन आर योर वेजिटेटिव बर्ड्स। तो फ्लावर बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर द वंस व्हिच डेवलप्स इनटू फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर stem, right, it contains buds in the axil, and axil कौन सा पॉइंट होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड, राइट। तो आपका लीफ जिस जगह पे नोड के साथ अटैच करता है, दैट पॉइंट इज योर एक्सिल, और वहां पे लीव्स डेवलप होते हैं, राइट, और सॉरी जो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड्स व्हिच देन लेटर डेवलप्स इनटू शूट्स, राइट। और ये जो बर्ड्स होते हैं आपके, इन्हें हम वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। तो एक बर्ड जो होता है आपका, राइट, सो दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, राइट। और यही वेजिटेटिव बर्ड्स को आप यूज करके इफ यू प्लांट देम, तो उनमें से आपके न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टेक द केस ऑफ ब्रायोफाइलम, राइट, ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो लीव्स के मार्जिन्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज कीजिए कभी ये लीफ, राइट, इफ इट फॉल्स डाउन, अगर कोई एनिमल ग्रेस करके जाता है, और फॉर एनी अदर रीजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से अगर ये मेन प्लांट बॉडी से टूट के नीचे जमीन पे गिरते हैं, सो दिस लीफ अंडर सुटेबल कंडीशंस, इट आपके ये बर्ड्स से न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं, right? So they have buds on the margins of the leaf, and if a leaf of this plant it falls on moist soil, each of these buds they give rise to a new plant. Similarly, there are certain roots of some plant, right, which can also give rise to your new plants. इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपके स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया, राइट। सो हियर यू विल सी दैट इस ब्रायोफाइलम के केस में लीफ, स्वीट पोटैटो के केस में रूट, तो ये सारे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट्स के, राइट, जिनको यूज करके हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कैक्टी का एग्जांपल लें, राइट, सो इवन दे कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स जब उनका उनका कोई भी पार्ट अगर मेन बॉडी से डिटैच होके सॉइल पे गिरता है, राइट, तो हर एक डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीटली न्यू प्लांट, राइट। सो जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करके किसी भी प्लांट को ग्रो करने का ट्राई करते हैं, राइट, सो इट टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट, कंपेयर टू योर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके कंपैरिजन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट टेक्स लेस टाइम इन विच योर प्लांट्स ग्रो, बिकॉज जैसे अगर हम लोग ग्राफ्टिंग का टेक्निक यूज करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके स्टेम और रूट सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ग्राफ्टिंग में यू टेक अनदर पार्ट ऑफ योर सिमिलर फ्लावर और आप उसे इसके साथ अटैच कर देते हैं, राइट, यू टाई इट ओवर हियर, और फिर यहाँ पे सो ऑलरेडी आपका जो स्टेम और रूट सिस्टम है इट इज ऑलरेडी इन प्लेस, राइट, यू डू नॉट हैव, द प्लांट डज नॉट नीड टू ग्रो दिस एंटायर सिस्टम, एंड देयरफॉर जब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं तो जल्दी आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। एंड जो न्यू प्लांट्स होते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, राइट, एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि जब सेम प्लांट के पार्ट को यूज करके आप एक और प्लांट ग्रो कर रहे हो, राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज आप इसी के सेल्स या इसी के टिश्यूज को लेके यू आर ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। तो जो हमारे सेल्स और टिश्यूज होते हैं, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट, एंड दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ योर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए से क्या
बनते हैं, डीएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब दिस सेम डीएनए इट इज पास्ड फ्रॉम द पेरेंट इनटू द न्यू प्लांट, राइट। सो जो प्रोटीन्स इस प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं सेम इसी प्लांट में भी प्रोड्यूस होंगे 99% केसेस में, राइट। थोड़ा बहुत डीएनए वेरिएशन हो सकता है बट लेट्स नॉट टेक इनटू अकाउंट, एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट since only a single set of DNA is being passed, right, so therefore your new plants they are exact copies of your parent plants, right. Another method of asexual reproduction is called budding, right, and this is something which we see in case of yeasts. तो ईस्ट जो होते हैं वो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक सिंगल सेल वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है जो मोस्टली आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, राइट, ग्रो करना, एवरीथिंग। सो your yeast they grow and multiply every few hours if sufficient nutrients is made available to them, अगर उन्हें proper amount of carbohydrate या glucose मिल रहा है तो ये बहुत जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, they will make a chain of budding yeast cells, राइट। तो ये प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, जो आपका ईस्ट का सेल होता है वहां पे एक आउटग्रोथ अपीयर करता है जिसे हम लोग बड बोलते हैं, राइट। सो ये जो आउटग्रोथ है ये बढ़ते जाता है, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट करता है, एंड व्हाट हैपेंस इज जो डीएनए है इस डीएनए की कॉपी बनती है पहले, एग्जैक्ट कॉपी विच इज देन अगेन ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू बड, राइट। और इसी तरह से आपके एक पेरेंट सेल में से डॉटर सेल्स बनते हैं, उसमें से फिर और फर्दर सेल्स बनते हैं, फर्दर सेल्स बनते हैं, एंड हियर again the same thing happens is these all are identical to each other because the same set of DNA is being passed into all the daughter cells, right. So ये जो small bulb like projection बाहर निकलता है, right, that is called your bud, और the bud it gradually grows, right, और वो आपके जो मेन पेरेंट सेल है उसमें से डिटैच हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल्स, और कभी कभी ईस्ट सेल्स जो होते हैं, राइट, दे ग्रो एंड मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर ईस्ट सेल्स, ठीक है। तो आपका एक चेन बनता है बड्स का, एंड थ्रू दिस प्रोसेस योर ईस्ट, राइट, दे कैन ग्रो इनटू वेरी लार्ज नंबर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Another method of asexual reproduction is your fragmentation, right? And now fragmentation is something which we see in organisms called Spirogyra. ठीक है, तो आप जब भी कोई पॉन्ड्स में जाते हो या रिवर साइड में जाते हो तो आपको ऐसे स्लाइमी ग्रीन सब्सटेंसेस देखने मिलते होंगे, राइट। सो एंड कुछ स्टैग्नेंट वाटर बॉडी हो गया जहाँ पे वाटर का ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, so these structures, right, they are collectively called algae, right, again because they contain chlorophyll, इसका मतलब ये खुद से photosynthesis perform कर सकते हैं, right। तो जब इन्हें sufficient amount of water and nutrients available होता है, जो आपका algae है it grows and multiplies rapidly by the process of fragmentation। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो ये पूरा सिंगल स्ट्रक्चर होता है इट ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक करके दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है ये, ठीक है, दो पीसेस में ब्रेक करता है, एंड दीज इंडिविजुअल पीसेस देन ग्रो इनटू सेपरेट डिफरेंट इंडिविजुअल। सपोज कीजिए ये पीस आपका जो ब्रेक होकर आया है यहाँ पे, दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ये जो आपका पीस है दिस अगेन विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बीच से ब्रेक होके बोथ द पीसेस दे अगेन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, दे अगेन ब्रेक, दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो फ्रैगमेंट्स है, राइट, बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये फ्रैगमेंट्स बनने का, एंड देयरफॉर दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। फिर एक और मेथड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मशरूम्स है, राइट, दे रिलीज स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट,
right? And since they are very light in weight, they can be very easily carried away by wind, right? So they keep on floating in air, right, as they are very lightweight, and because of the fact that they can be carried away by wind, they can cover very long distances, right? So स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, राइट? स्पोर्स जो होते हैं वो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, और हर एक स्पोर जो होता है इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ताकि अगर ये कोई अनफेवरेबल कंडीशन में जाके आपके स्पोर्स गिरते हैं, सो दैट इट वोंट गेट डैमेज्ड, राइट? इनफैक्ट इट वेट्स, राइट? जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो हेल्प करती है आपके स्पोर को, सो दैट फेवरेबल कंडीशन वो अचीव कर सके, एंड आफ्टर दैट इट जर्मिनेट्स, right? So these protective covering, they help the spore to survive for a very long period of time, and when these spores they get favorable condition, right, they germinate and it develops into a new individual. So there are certain plants जो इस method से reproduce करते हैं, like your moss and ferns, right? So even they produce spores, and the one thing which you have to remember here is spores are a asexual reproductive bodies, right? Again, there are no two parents involved over here, single parent ही involved होता है, जिससे spores निकल के when they fall into a different place, वहाँ पे similar rhizopus का जो आपका structure है वो grow करने लगता है, right? Now let's talk about sexual reproduction, right? तो asexual reproduction में हम लोगों ने देखा आपका vegetative reproduction आ जाएगा, right? फिर उसके बाद आपका स्पोर फॉर्मेशन आता है, बर्डिंग आता है, फ्रैगमेंटेशन आता है, राइट? सो दीज ऑल आर योर एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हियर विल बी टॉकिंग फर्स्ट अबाउट फ्लावर्स, राइट? बिकॉज दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो आपके क्लास 6 में इन योर टॉपिक ऑफ गेटिंग टू नो प्लांट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न कि आपके एक फ्लावर में कौन कौन से अलग पार्ट्स होते हैं। Basically here we'll be focusing on stamen, pistil, right? Because your stamen, they are the male reproductive part, and the pistil, it is the female reproductive part. So this, ये जो structure आप यहाँ पे देख रहे हैं, right, that is your entire stamen, which is again made up of two parts, this top part which is the anther, और ये stem जैसा part जो आप देख रहे हैं, that is your filament. Similarly your pistil, right, which is this part, right, your pistil is again made up of three parts, consists of three parts, which is your stigma, your style, right, and your ovary, और आपके ovary के अंदर आपके ovules present होता है, right? So now there are flowers which either contains only the pistil or the stamen, या तो उस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो दैट इज, तो उन वैसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, राइट? यूनि एज इन वन, राइट? सो मतलब कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, इधर मेल और द फीमेल, एंड फ्लावर्स व्हिच कंटेन्स बोथ स्टेमन एज वेल एज पिस्टल, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? सो हियर both the parts are present, your stamen as well as your pistil, so this is an example of bisexual flower, bi as in two, right? So your corn, papaya, cucumber, right, they produce unisexual flowers, whereas your mustard, rose, petunia, these all produce bisexual flowers, मतलब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है इसमें। सो there might be cases, right, that both the male and female unisexual flowers, they may be present on the same plant, right? Or there might be chances कि ये different plants में भी present हो, right? So जो anther होता है, right, आपके stamen के दो part होते हैं, one is your anther, the other one is your filament. तो anther के अंदर आपके pollen grains होते हैं, and what exactly are pollen grains? Pollen grains are your male gametes, ठीक है? तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपके सामने आता है, which is your gametes. And what exactly are your gametes? Gametes are nothing but your reproductive
सेल्स, ठीक है, मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं, राइट। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में भी ऐसे सेल्स होते हैं विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम इज द केस इन प्लांट्स एज वेल, राइट। तो anther, it contains your pollen grains, and these pollen grains, they are the male gametes. Similarly, आपका जो pistil होता है, it consists of your three parts, that is your stigma, style and this entire section which is your ovary. ovary के अंदर, right, it contains your ovules. और जो फीमेल गैमेट होता है, राइट, अभी मेल बॉडी जो मेल पार्ट है उसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, सिमिलरली फीमेल पार्ट में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या फीमेल गैमेट्स होता है विच इज कॉल्ड द एग, राइट। और ये एग कहाँ पे फॉर्म होता है, ये आपके ओव्यूल के अंदर आपके एग्स फॉर्म होता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द मेल गैमेट, right, and the female gamete, they fuse to form a zygote, right. So basically these two cells, which is your male gamete and your female gamete, they fuse with each other to form a single cell, right, जिसे हम zygote बोलते हैं, right. Now before we go into the details of how this process takes place or what this process is, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, लेट्स सी कि ये स्टेमन्स जो है वो पोलन ग्रेन को रिलीज कैसे करते हैं सो दैट इट रीचेस द ओव्यूल, राइट, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। सो जनरली जो आपका पोलन ग्रेन होता है, राइट, वो तो आपके एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट, आपके पोलन ग्रेन आपके एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो पोलन ग्रेन होता है इट हैज अ वेरी टफ प्रोटेक्टिव कोट, जो किस चीज में हेल्प करता है पोलन ग्रेन को, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। और ये पोलन ग्रेन जो होते हैं दे आर वेरी लाइट, राइट, एंड दे कैन बी कैरिड बाय योर विंड एंड वाटर। लाइट वेट होते हैं, इजीली विंड या वाटर इन्हें कैरी करके ले जा सकते हैं। इनफैक्ट सर्टन इंसेक्ट्स, राइट, दे ऑल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। जहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग हनी बीज का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सो योर हनी बीज दे विजिट दीज फ्लावर्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट नेक्टार, राइट, एंड व्हेन दे आर कलेक्टिंग नेक्टार, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स इनके बॉडी से पे अटैच हो गए, राइट, दीज येलो डस्ट जो आप इसके बॉडी पे देख रहे हैं, सो दे आर द पोलन ग्रेन्स, राइट। सो when this bee, right, it flies from your one flower to another flower, जो pollen grain है वो already इसके body पे attach हो चुके हैं, when it reaches another flower in search of nectar, तो there are chances कि ये जो pollen grain है वो इस stigma पे transfer हो जाएंगे, right, and that is a very necessary part for the process of the fusion of male and gametes, because fusion करने से पहले आपके पोलन ग्रेन को आपके स्टिग्मा तक पहुंचना पड़ेगा, right. So ये जो process होता है, right, where insects or water or wind, right, they carry the pollen grain, so तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, राइट, वेयर योर पोलन ग्रेन, राइट, इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा of a flower of the same kind, right, so same kind here becomes a very important thing। अगर आपके जो पोलन ग्रेन है वो चाइना रोज के फ्लावर से दूसरे चाइना रोज के फ्लावर में जब जाएंगे तभी ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा, राइट। सो ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है वेयर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन,
राइट। सो बेसिकली पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो पोलन ग्रेन है जो आपके एंथर के अंदर प्रेजेंट है, दिस पोलन ग्रेन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, राइट। एंड ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस शुड टेक प्लेस इन द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। हिबिस्कस का जो पोलन ग्रेन है वो हिबिस्कस के ही स्टिग्मा में ट्रांसफर होना चाहिए। If this pollen grain reaches to stigma of another flower of any different kind, तो pollination का process successful नहीं होगा, right? So same kind के flower में ही transfer होना जरूरी है। तो इसमें अभी pollination के दो तरीके होते हैं, one is your self pollination, the other one is your cross pollination। self pollination में क्या होता है, that if the pollen it lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। so basically आपका जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के एंथर से निकल के सेम फ्लावर के पिस्टिल में या सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जब लैंड करता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। या तो सपोज कीजिए आपका प्लांट है, राइट, देयर इज वन फ्लावर, राइट, एंड another flower, the pollen grain it travels from this flower and reaches to the stigma of this flower। so flowers alag alag hai but they are part of the same plant, right? so that is what is being said over here, that when the pollen it lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, राइट, तब आपका क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपकी फ्लावर टाइप होगी वो तो सेम ही होगी, बट द पोलन, राइट, इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। जो आपका प्लांट है वही अलग होगा, राइट, बट इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड। अगर हिबिस्कस का प्लांट है तो दूसरा प्लांट भी हिबिस्कस का ही होना चाहिए, राइट। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नाउ पॉलिनेशन हो चुका है, जो आपका पोलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा तक पहुंच गया है, राइट। यहां से अब क्या होता है कि एक ट्यूब डेवलप होता है और ये ट्यूब में जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं, राइट, एंड रीचेस टू द ओव्यूल्स, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे फ्यूज विथ ईच अदर, राइट, which results in the formation of a zygote, right? so the cell which results after the fusion of male and female gametes we call it zygote। और ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, the process of the fusion of male and female gametes in order to form a zygote is called fertilization, right? ये पूरे प्रोसेस को हम fertilization बोलते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं विच इज कॉल्ड योर जाइगोट, राइट। और ये जो आपका जाइगोट होता है, दिस नाउ डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, राइट। सो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना, जाइगोट फिर आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो इट इज प्रेजेंट इन अ प्रोटेक्टिव कोटिंग विच इज योर सीड। और ये सीड किस में से बन रहा है, ये आपका ओव्यूल जो है विच देन डेवलप्स इनटू द सीड। और यही सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है, राइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज योर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, राइट, अब आपका फ्रूट किस तरह से बनता है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है फर्टिलाइजेशन का, ये आपके ओवरी के अंदर हो रहा है और ओवरी के अंदर भी ओव्यूल के अंदर हो रहा है, राइट। सो ये जो ओवरी है आपका, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे फॉल ऑफ, राइट। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज when this process is completed, zygote बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है, तो बाकी के जो आपके पार्ट्स है प्लांट्स के, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, ठीक है। और
यही पार्ट को अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली दिस इज योर ओवरी विच इज नाउ राइपन्ड, ठीक है, और इसी के अंदर आपका ओव्यूल भी प्रेजेंट है. सो बेसिकली द फ्रूट इज नथिंग बट इट्स अ राइपन्ड ओवरी. और जो सीड डेवलप कर रहा है वो कहाँ से डेवलप कर रहा है? इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द ओव्यूल, राइट. लेट्स हैव अ बेटर लुक. ये जो ओव्यूल था जिसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, वही ओव्यूल फिर आपके सीड में डेवलप कर जाता है. और ये बाहर का जितना भी पार्ट है विच वाज वंस पार्ट ऑफ द ओवरी, दिस हैज नाउ राइपन्ड इनटू अ फ्रूट, राइट. सो बेसिकली आप कभी भी कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो, सो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज अ राइपन्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर, राइट. सीड्स आपके डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम द ओव्यूल्स. सीड के अंदर दो चीजें होती है. एक तो आपका एम्ब्रियो होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो देयर इज सम स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड. और ये जो एम्ब्रियो है इट इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है. तो कुछ केसेस में क्या हो सकते हैं कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं दे आर फ्लैशी, राइट, और जूसी होते हैं, सच एज इन केस ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज. कुछ केसेस में जो फ्रूट्स होते हैं दे आर हार्ड, राइट. सो ये बाहर का जो लेयर होता है बहुत ही हार्ड होता है, लाइक इन योर आलमंड्स एंड वॉलनट्स, राइट. सो इस तरह से फिर आपका फ्रूट्स बनते हैं. फ्रूट्स जो है फिर इट इज लेटर ऑन कंज्यूम बाय एनिमल्स, और वो फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हैं और सीड को डिस्पर्स कर देते हैं, विच देन जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, राइट. सो नाउ अब आपका पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फ्रूट भी बन गया, राइट. सो नाउ अब ये सीड को डिस्पर्स कैसे किया जाए? डिस्पर्स करने का मतलब अलग अलग जगहों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सके, राइट. सो जो नेचर इट हैज डेवलप्ड मेनी टेक्निक्स, राइट, जिसकी वजह से सीड्स जो है उसे अलग अलग जगह पर डिस्पर्स किया जा सकता है, राइट. और हमने ये भी देखा है कि एक जगह पे सेम तरह के प्लांट्स ग्रो नहीं करते, राइट. वहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगहों पे सीड्स को डिस्पर्स कर दिया जाता है. सो यू नो द रीजन व्हाई दिस इज डन, ताकि वहां पे किसी भी तरह का नेचुरल कंपटीशन नहीं हो सके. इट सपोज कीजिए कि आपके बहुत ही क्लोज विसिनिटी में मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे कंपटीशन क्रिएट होगा. ये जो प्लांट है, राइट, इट माइट ग्रो वेरी टॉल, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इट विल ब्लॉक द सनलाइट विच इज कमिंग इन, एंड बिकॉज ऑफ विच ये प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट रिसीव नहीं होगा, राइट. सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स को लेके कंपटीशन हो सकता है, राइट. आपके सॉइल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और यू नो व्हेन प्लांट्स दे ग्रो वेरी क्लोज बाय टू ईच अदर, आपके रूट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, एंड देन देयर विल बी कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एज वेल, राइट. सो दोनों ही केसेस में जो दोनों प्लांट्स है उनमें ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा नहीं, बिकॉज दे आर नीदर गेटिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट नॉर दे आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो सीवियर कंपटीशन होगा सनलाइट को लेके, वाटर को लेके, मिनरल्स को लेके, स्पेस को लेके भी, राइट. और उसी की वजह से जो सीड्स होंगे दे विल नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, राइट. एंड देयरफॉर प्लांट्स दे बेनिफिट बाय द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल, राइट. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स. आपका प्लांट ग्रो कर गया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और सीड जो है वो यहीं पे पास में ही गिर गई. ये सीड वापस एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट करेगा, और प्लांट और उस द न्यू प्लांट विच इज फॉर्म्ड, उन दोनों के बीच में ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फिर, राइट. सो यू नो जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा उतना ज़्यादा आपके हैबिटाट में वैरायटी आएगी, आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, और एक ही रीजन में अलग अलग तरह के मोर वैरायटी ऑफ प्लांट्स विल बी ग्रोन, राइट. सो अलग तरीके होते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए. योर सीड्स दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, बाय वाटर, एंड बाय बर्स्टिंग, right. So there are certain seeds and fruits of plants which are carried away by wind, water and animals. Winged seeds, right, जो seeds होते हैं उसमें ऐसे structures होते हैं, wing like structures होते हैं, ताकि हवा उन्हें अलग अलग जगहों तक कैरी करके ले जा सके, राइट. सो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके ड्रम स्टिक्स, मेपल, राइट, आक,
and hairy fruits of sunflower, they are blown away by wind to far away places. Similarly, वाटर के हेल्प से अगर किसी सीड को डिस्पर्स होना है तो उसके इट नीड्स टू डेवलप सर्टन structures, right, so that it has the ability to float on water. So this is something which we see in case of coconuts, right? So the seeds, right, they develop floating abilities in the form of spongy or fibrous outer coats, right, जो हम कोकोनट के केस में देखते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और जो रिवर अगर अलग अलग जगहों पर बह के जा रही है तो ये सीड्स को भी डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचा देती है. सिमिलरली एनिमल्स के केस में, राइट, देर आर सर्टन सीड्स जिनके सरफेस पे ऐसे हुक्स और स्पाइन निकले हुए होते हैं, राइट. सो इफ एन एनिमल क्रॉसेस थ्रू देम, राइट, या उसके फ्रूट के ऊपर अगर वो फीड करने का ट्राई कर रहा है तो ये जो विद द हेल्प ऑफ दी स्पाइंस एंड दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो सीड्स होते हैं वो एनिमल के फर से चिपक जाते हैं, राइट. एंड व्हेन द एनिमल इट मूव्स टू डिफरेंट लोकेशंस तो ये सीड जो है वो भी उनके साथ अलग अलग जगहों तक पहुंच जाते हैं, right. So these seeds, they have your spiny seeds होते हैं जिनमें hooks होते हैं, because of which they get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. तो इसके example में आ जाएंगे आपका xanthium, urina. And then there are certain plants, right, which explodes, right, जो उनके seeds होते हैं they are thrown away, with sudden jerks. तो जो फ्रूट्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं, एंड जो सीड्स होते हैं, राइट, दे आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. So these key seeds, they are scattered far from the parent plant, right. So this happens in case of castor, balsam, right. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वो फ्रूट के ऊपर कोई वाटर का ड्रॉप गिरता है तो how the entire fruit, right, it bursts open and your seeds, they are dispersed to far off places. Similarly in case of squirting cucumber, right, आप देख सकते हैं कि किस तरह से with force the seed, they are dispersed to, they are dispersed with a lot of force, right. So yes, that was it, right, in different ways, through wind, water, animal, and through bursting of fruits, how the dispersal of seeds, it takes place, right. And that was it. Thank you so much, all of you, for joining in. I hope this one short revision was very helpful. Reproduction, it is a very important topic. अगर आपका ये वाला topic clear हो गया है कि किस तरह से fertilization होता है, pollination होता है, आपके gametes क्या होते हैं, why they are helpful, तो it would help you a lot in your higher classes, क्योंकि आपके other important topics आएंगे like reproduction in animals, right, in which almost same concepts के ऊपर ही उस topic के बारे में discussion होगा, right. So again, thank you so much all of you for joining in, and I'll meet you in the next module.